Hello students, in your first video you have studied about natural number, whole number, integer, even number, odd number. Now I am going to tell you about prime number. What is prime number? Odd number और prime number के बीच में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. I am going to tell you about prime number. The number which have two factors only. You have to say only this line. The number which have only two factors, one and itself. जैसे 3 है, 3 किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 1 3 जा 3 and 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3. So 3 is prime number because 3 has two factors, 1 and 3. If we talk about 5 and 5 have two factors, 1 and 5. 5 के दो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा. But if we talk about 6, then 6 का फैक्टर 1 की टेबल में आएगा 6, 2 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा और 6 की टेबल में आएगा. So there is 4 factors of 6, 1 2 3 and 6. इन सब के टेबल में 6 आएगा. So 6 is not a prime number. 6 prime number नहीं. So what I have said, the number which have only two factor, the number which have only two factor, one and itself is called. Now there is twin prime number. What is twin prime number? Two prime numbers, दो prime numbers जिनके बीच का difference 2 हो. Two prime numbers whose difference is equal to 2. For example, जैसे 5 है and 7. ये दोनों prime number है. अब 7 में से 5 माइनस करो तो कितना आएगा? 2 आएगा. So 5 and 7 these are twin prime. For example, as 17 is prime number and 19 is prime number. So 17 and 19 is twin prime number. If we talk about 11 के बाद 13, तो 11 and 13 दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है और दोनों प्राइम नंबर है. So it is what is twin prime number. But क्या 13 और 13 के बाद कौन आता है प्राइम नंबर? 15 तो प्राइम नंबर नहीं है. 15 के तो फैक्टर 2 से ज्यादा होता है. 17 प्राइम नंबर है, तो 13 एंड 17 ट्विन प्राइम है? नहीं है. 17 में से 13 माइनस करो 4 आएगा, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है. तो 2 प्राइम नंबर whose difference is equal to 2 कंटीन्यूअस प्राइम नंबर बोल सकते हो. दो लगातार प्राइम नंबर, क्योंकि लगातार होंगे तभी उनका डिफरेंस 2 होगा. So 2 continuous prime number or 2 prime number whose difference is equal to 2, these are called twin prime number. Okay? For example, मैं some examples लेंगे इसमें. Now we are going to talk about rational numbers. What is rational? हो गया. So what is rational number? You all know that the number which is in the form of p by q, जो नंबर p by q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे p and q क्या होगा? इंटीजर. Where p and q are integer. Integer क्या बताया मैंने? Number line पर from minus infinite to plus infinite, all the numbers are integer. p और q ये दोनों इंटीजर होने चाहिए. But q is not equal to 0. नीचे 0 नहीं चाहिए. 0 is integer. 0 integer है. p और q इंटीजर होना है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता. ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे नहीं. The number which is in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0, is called rational number. Okay? For example क्या होगा? 1 by 3, 4 by 5 और -1 by 2, -3 by 7 and so on. तो ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है. ये 1 क्या है? इंटीजर है. 3 इंटीजर है. ये 4 इंटीजर है. नीचे 5 इंटीजर है. यहाँ पे -1 इंटीजर है. ऊपर न्यूमरेटर इज -1 एंड डिनोमिनेटर इज 2, तो -1 by 2 इज रेशनल नंबर. -3 क्या है? इंटीजर है. नंबर लाइन पे आता है. 7 भी नंबर लाइन पे आता है, तो इट इज इंटीजर. अब ये इंटीजर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा. 1 by 0. q is not equal to 0. q should not be 0. q 0 नहीं होना चाहिए, तो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर नहीं है. The number which is in the form of p by q, अब डायरेक्ट इतना भी नहीं बोलोगे, ये बोलना जरूरी है. सिर्फ इतना मत बोलना कि जो कि p by q के फॉर्म में हो. The number which is in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0, is called rational number. For example, -1 by 3, -1 by 2, 4 by 5, 1 by 3. You can say anything, 4 by 7 और कुछ भी बोल दो. So these are rational number. 10th क्लास के हिसाब से बताऊंगा. तो 10th में थोड़ा सा है कि every terminating number is called rational number और every non terminating but repeating number is called rational number. तो terminating क्या है, non terminating क्या है, वो भी मैं यही बता दे रहा हूँ पहले.
लिसन, टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, ये क्लास 8 के लिए नहीं होता बट 9 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसी में आप पढ़ लीजिए। व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर? जैसे टर्मिनेटिंग, सो 4/5 इज टर्मिनेटिंग और नॉट? ये रेशनल नंबर तो है, ये भी इंटीजर इट इज रेशनल नंबर, बट इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट? देखो 4 को 5 से डिवाइड करो, 4/5 का मतलब क्या है? 4 को डिवाइड करना है 5 से, तो इफ वी डिवाइड 4/5 तो 5 0 is 0, रिमाइंडर इज 4, 0 उतारोगे तो पॉइंट लगेगा, एंड 5 8 जा 40, कट गया, रिमाइंडर आया 0। सो इफ वी डिवाइड 4/5 देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इट मींस इट इज टर्मिनेटिंग। 4/5 क्या टर्मिनेटिंग है? जब भी कोई रेशनल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, भले यहाँ पे डेसिमल में आए, यहाँ पॉइंट में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में जाने दो, लेकिन अगर कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कहेंगे ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे 1/3, अगर वन बात करूं 1/3 के बारे में, सो 1/3 क्या है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? 1 को डिवाइड करना है 3 से, 3 0 is 0, 1 बचा, 0 उतारा, रिमाइंडर पॉइंट लगा, तो फिर 3 3 is 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारोगे, फिर 3 टाइम्स 3 3 is 9, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 0 उतारोगे, फिर 3 3 is 9, तो कट नहीं रहा है, बार बार आप 3 3 is 9 पढ़ रहे हो एंड रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो 1/3 क्या है? टर्मिनेटिंग है? नहीं है, यहाँ पे कट गया था, जब 4 को 5 से डिवाइड किए थे तो कट गया था, बट अगर 1 को डिवाइड कर रहे हो 3 से तो आप देख रहे हैं कट नहीं रहा, यहाँ पे 3 3 बार बार आता रहेगा। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। दोनों आप यही समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर इज if we divide numerator by denominator and remainder is equal to 0, then we say that it is terminating. But if we divide numerator by denominator and remainder is not equal to 0, बार बार 1 आ रहा है, remainder 0 नहीं आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है लेकिन कट नहीं रहा है, बढ़ते 3 3 3 आता जा रहा है बार बार, तो ये 1/3 क्या है? 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। लेकिन रेशनल है, आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग है, बट सर 1/3 तो रेशनल नंबर है। हाँ है, टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर तब होता है जब क्वेश्चन जो आपका आता है वो रिपीटिंग हो, देखो 3 3 3 बार बार आ रहा है। सो टर्मिनेटिंग है, ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग हो, रिपीटिंग, सो ये दोनों केस में आपका रेशनल नंबर होता है। यहां पे आपका इसको बोलोगे रेशनल। इफ एनी नंबर इज टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब हो गया पूरा कट गया, जैसे 4/5 था, 1/3 में क्या हो रहा है? कट नहीं रहा है, और यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कट नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि हम बार बार 3 3 3 आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, इन दोनों केस में नंबर कैसे होंगे? रेशनल। अब इररेशनल कब होंगे? जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग। इफ एनी नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग then it is said to be irrational number. For example ऐसे आ जाए कि 4.67132168 कुछ भी आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि 4.67676767 ऐसा नहीं आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 6767 बार बार आ रहा है, यहाँ पे देखो 671321 कुछ भी आ रहा है, तो कटे भी ना, और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इस टाइप में आ जाए, तो आप कहोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कट नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, कोई नंबर बार बार नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ 3 3 3 बार बार आ रहा था। तो अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो आप कहोगे इररेशनल है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो कहोगे रेशनल है। सिर्फ एक केस है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसी केस में कहोगे इररेशनल है। समझ गए टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग? जब कोई फ्रैक्शन डिवाइड करोगे कट गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग, बस इतना है। अब वो रेशनल इररेशनल केस में है कि टर्मिनेटिंग है तो रेशनल,
नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है तो भी रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देन इट इज कॉल्ड इररेशनल। सो यहीं पे इररेशनल की डेफिनेशन भी दे दे रहा हूं। इररेशनल नंबर क्या होता है? सो इन सिंपल यू कैन से इररेशनल नंबर में एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। आप लोग ये कहना चाहते हो कि सर जो नंबर p by q के फॉर्म में नहीं होता वो इररेशनल होता है, सही है। यहाँ पे रेशनल में मैंने बताया था, रेशनल में बताया था कि द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इररेशनल में आप बोल सकते हो द नंबर व्हिच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इररेशनल। बट ये आपका सबसे सही डेफिनेशन है क्योंकि क्लास 10 में पढ़ोगे, अभी से आप जान लो अच्छा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पे बोलना है। Every terminating number is rational number या every non-terminating and repeating number is rational number. If we talk about irrational, then there is only this definition: every non-terminating and non-repeating number is irrational number. एक लाइन में सीधा बोल दो, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है वो p by q. Every non-terminating and non-repeating number is irrational. जैसे √2, √3 ये सब क्या है? ये सब irrational है। अब √2 में तुम्हारा √2/1 है तो कहोगे कि p by q के फॉर्म में है सर, अब नीचे 0 भी नहीं है तो इरेशनल है? नहीं, इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि p जो है वो इंटीजर नहीं है। मैंने क्या कहा था? p and q शुड बी इंटीजर। p by q के फॉर्म में है और इंटीजर होता है, ये इंटीजर नहीं है ना, √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए इरेशनल है। और √2 जब निकालोगे आप और चुके हो पहले, स्क्वायर रूट जब निकालते हो 2 का तो √2 की जो वैल्यू होती है कुछ ऐसी होती है 1.414 आगे चलती रहती है, कटता नहीं है। 2 का स्क्वायर रूट निकाल के देखिएगा, जिसको आता है नहीं आता बाद बताया जाएगा, आगे इस तरह चलता रहेगा पॉइंट के बाद, कटेगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। 1.414 ऐसे कुछ ना कुछ आएगा, लंबा जाता रहेगा, कटेगा नहीं। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो कट नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या है? इररेशनल। तो आप ये बोल सकते हो कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज रेशनल। फॉर एग्जांपल में आपको ये आता है √2, √3, √5, ये सब नंबर क्या है? इररेशनल।